ओके, तो इस एग्जाम की एक बहुत ही खास बात है, और वो बहुत ही खास बात ये है कि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इट मीन्स हर एक क्वेश्चन को ट्राई करना एक बेस्ट स्ट्रेटेजी रहने वाला है। ओके, तो यस एवरीवन, मैं होप करती हूँ कि यहाँ तक आप सबको सब कुछ समझ में आया है, पर फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की तरफ, राइट। तो देखो, वैसे तो इस एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्लास 11th और क्लास 12th का ही रहता है, लेकिन ऐसे तो क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस बहुत ही वाइड है, राइट। तो इतना वाइड सिलेबस स्टडी करना इट्स नॉट एज मच ईजी। तो इसीलिए ये बात जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन से सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन से सिलेक्टेड यूनिट्स को पढ़ना है। क्योंकि अगर हम बिना ही सिलेबस जाने प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर देंगे तो फिर वो बिल्कुल बिना डायरेक्शन के चलने जैसा हो जाएगा। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना, हमने हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझना है। ओके, सो लेट्स एक्सप्लोर द सिलेबस। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की। तो फिजिक्स सब्जेक्ट्स में आपको प्रिपेयर करनी है 23 यूनिट्स। हाउ मेनी यूनिट्स यू हैव टू प्रिपेयर? 23 यूनिट्स प्रिपेयर करनी है। और अब वो 23 यूनिट्स कौन सी हैं, ये बिल्कुल यहाँ स्क्रीन पर है। आई होप कि ये स्क्रीन आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए, यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन एंड मेजरमेंट। यूनिट 2 इज डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन इन 1 डायमेंशन। Third is description of motion in 2 and 3 dimension. Fourth is laws of motion. Fifth is work, energy and power. Sixth is rotational motion. I hope कि you all are familiar with these all units, है ना, सबने पढ़ रखी हैं अच्छे से। Unit 7 is gravitation. Unit 8 is properties of matter. Unit 9 is heat and thermodynamics. 10th is oscillation. 11th is waves. 12th is electrostatics. 13th is current electricity. 14th is thermal and chemical effect of currents. 15th is magnetic effect of current. 16th is magnetism. 17th is electromagnetic induction and alternating current. 18th is electromagnetic waves. 19th is wave optics. 20th is ray optics and optical instruments. 21st is electrons and photons. Next is atoms and nuclei, and the last one is solids and semiconductor devices, right? So this is all about the syllabus of physics which you have to prepare for this exam. Now let's move to next subject, that is chemistry. तो केमिस्ट्री की बात करते हैं हम। केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट आपको प्रिपेयर करनी है 37 यूनिट्स। हाउ मेनी यूनिट्स? 37. So let's start from unit 1. Unit 1 is atoms, molecules and chemical arithmetic. Next is elements, their occurrence and extraction. Next one is states of matter. तो इन यूनिट्स को देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं सबसे पहले, राइट। यूनिट 4th इज एटॉमिक स्ट्रक्चर. यूनिट 5th इज केमिकल फैमिलीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट वन इज बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. Next is carbon and its compounds. Next, energetics. Next, chemical equilibrium. And the next one is redox reactions. And then rates of chemical reactions. Next, chemistry of non-metals of group 1. Chemistry of non-metals of group 2. Chemistry of lighter metals. Next is chemistry of heavier metals. Structure and shapes of hydrocarbons. Preparation and properties of hydrocarbons. Next is purification and characterization of organic compounds. Next one is 19th unit, which is the molecules of life. Next, atomic structure and chemical bonding. Next, solid state. Next one is solutions. And next we are coming to unit number 23, which is chemical thermodynamics. 24th is electrochemistry. Next one is chemical kinetics. अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि we have entered into the world of physical chemistry, right? Next is organic chemistry based on functional group 1. Next, organic chemistry based on functional group 2. So here we have entered into the world of organic chemistry. Next, organic chemistry based on functional group 3. Next, chemistry of representative elements. Next, transition metals including lanthanides. Coordination chemistry and organometallics.
nuclear chemistry. Next one is synthetic and natural polymers. Next, surface chemistry. Next, biomolecules, and then chemistry of biological processes, and the last one is chemistry in action. All right. तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री. तो अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, विच इज बायोलॉजी. तो बायोलॉजी में आपको प्रिपेयर करनी है टोटल 9 यूनिट्स. कितनी यूनिट्स? 9 यूनिट्स. अब वो 9 यूनिट्स कौन सी हैं देखते हैं, इन्हें भी हम वन बाय वन. तो वो 9 यूनिट्स हैं. फर्स्ट वन इज द लिविंग वर्ड, सेकेंड इज यूनिटी ऑफ लाइफ, थर्ड इज डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, fourth is organism and environment, fifth is multicellularity, that is structure and function, plant life, sixth is multicellularity, structure and function, animal life, next is continuity of life, next is origin and evolution of life, next is application of biology. ठीक है. So this is all about the biology. Now moving further to subject of मैथमेटिक्स. अब मैथमेटिक्स की जहाँ बात आती है तो मुझे यहाँ से एक बात बड़ी ध्यान आ रही है कि मैंने देखा है अक्सर बच्चे एग्रीकल्चर का नाम सुनते तो ऐसे सोचने लग जाते हैं कि एग्रीकल्चर तो एक साइंस फील्ड है. तो जिनके पास 12th में मैथ्स होता है वो बच्चे इस फील्ड को चूज तो करना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हमारे पास तो भाई 12th में मैथ्स रहा है तो हम तो इस फील्ड को चूज नहीं कर सकते, इस फील्ड को तो सिर्फ बायोलॉजी वाले ही चूज कर सकते हैं, इसके लिए सिर्फ बायोलॉजी वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. इस टाइप की कंफ्यूजन्स को अपने माइंड में ना रखें. ओके. सो मैथ से आपको देखो कितने यूनिट्स प्रिपेयर करने हैं. मैथ से आपको करनी है टोटल नंबर ऑफ 20 यूनिट्स. तो देखो मैथ्स की कितनी इंपॉर्टेंस है इस एग्जाम में, है ना. तो फर्स्ट यूनिट इज सेट्स एंड बाइनरी ऑपरेशन, सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स नंबर, थर्ड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, fourth is sequence and series, fifth is statistics, sixth one is permutation and combination, seventh one is mathematical induction and binomial theorem, next is linear programming, next exponential and logarithmic series, next is trigonometry, next one is circles, and 12th unit is conic section, next matrices and determinants, next vectors and three-dimensional geometry, next differential calculus, integral calculus, definite integral, differential equations. And after this we are reaching to unit number 19, which is correlation and regression. Next, the last one is probability. Okay, so this is all about syllabus of mathematics. Okay. So moving to the next subject, that is agriculture. तो agriculture से आपको prepare करनी है 5 units. How many units you have to prepare? 5. तो अब ये 5 units कौन कौन सी हैं? Let's have a look. First one is introductory basic sciences. तो जिसमें आपको ये वाले topics mainly पढ़ने हैं, ठीक है, जो दिए हैं. आप इसका screenshot भी ले सकते हैं if you want to take them. Okay. So moving to the unit number 2, which is livestock production. Livestock production. तो you can see यहाँ भी मेन टॉपिक्स जो आपको स्टडी करने हैं इस टॉपिक में, लाइक इंट्रोडक्शन, केयर एंड मैनेजमेंट, फीड्स एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस. तो ये सब बोल्ड जो वर्डिंग्स में दिए हैं ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको मेनली स्टडी करनी है, जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है. तो ये आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इफ़ यू वांट टू टेक, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो. क्योंकि जब तक आप सिलेबस से ही फैमिलियर नहीं होंगे तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है प्रिपरेशन करने का अपने हिसाब से, ठीक है. नेक्स्ट वन इज यूनिट नंबर 3, विच इज क्रॉप प्रोडक्शन. तो इसमें भी ये कुछ मेन टॉपिक्स रहने वाले हैं जिसपे आपको मेन फोकस करना है. ओके. मूविंग फर्दर, देखो ये सभी यूनिट 3 के ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ओके. वीड कंट्रोल, क्रॉप्स, ये सब कुछ.
नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 4 डेट इज हॉर्टिकल्चर। इसमें भी ये कुछ इसके हैं मेन टॉपिक्स, इंट्रोडक्शन, वेजिटेबल गार्डनिंग, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, तो आप इसे देख सकते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, राइट, जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं उनको तो ये जो सिलेबस है काफ़ी फैमिलियर सा लग रहा होगा, है ना। ओके, सो नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 इज एग्रीकल्चर बिजनेस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ से कुछ ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, देखो ये वाले टॉपिक्स आपको मेनली स्टडी करने। ओके।